Good morning, students. Welcome to your EVS class. How are you all? I hope you all are good. So, students, in last class, we have started with the new chapter from your EVS textbook, the chapter number 14, Animals Around Us. And in last class, we have completed about the different types of animals, in which we have completed pet animals, domestic animals, and wild animals. And in today's class we are going to discuss about the other types of the animals. Okay, so before starting with the today's class, I would like to revise the topics which we have covered in the last class. So in last class we have discussed about the different types of animals. Those were pet animals, domestic animals, and wild animals. So pet animals are those animals which can be kept inside the homes. Okay, and we keep generally these animals at home for the companionship and the fun. And what are the examples of the pet animals? The examples of the pet animals are parrots, cats, dogs, okay, etc. Then the next type of animal was domestic animals. So the animals which can be kept on the farm and they give us many useful things, such animals are known as domestic animals. डोमेस्टिक एनिमल्स इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो फार्म में रखे जाते हैं, खेतों पर रखे जाते हैं, और जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती है. ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस डोमेस्टिक एनिमल्स? द एग्जांपल्स ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर गोट, काऊ, बफेलो, डोंकी, etc. Okay, then the next type of the animal which we studied in the last class was wild animals. So these wild animals generally found in the jungle, and we cannot stay together with these animals. They can't be kept in the homes. Okay, because they are very violent in nature, and we cannot tame them. Okay, we cannot teach them how to learn together with the humans, because it is very dangerous to live with these animals. Okay, these animals are very dangerous. They can attack on us, they can harm us. That's why generally these animals are found in the jungle or the forest only. And what are the examples of these animals? Wild animals. The examples of the wild animals are tiger, lion, fox. Okay, there are so many animals we can generally say which come under the category wild animals. Okay, tiger, lion, fox, snakes, etc., etc. Okay, then now in today's class we are going to discuss about the new type of the animal, that is milch animals. Okay, milch animals. So the animals which give us milk are called milch animals. So kids, the animals which gives us milk, the animal which give us milk, they are known as milch animals. जो भी कोई एनिमल, जो भी कोई प्राणी हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स. ओके, and what are the examples of the milch animals? Cow, buffalo, and goat are the milk giving animals. Children should drink milk daily. These type of animals live in a shade. Okay, so ये जो मिल्च एनिमल्स है, ये दे प्रोवाइड अस मिल्क, एंड जनरली दिस एनिमल्स लिव इन अ शेड विच इज़ बिल्ड बाय द ह्यूमंस. ये जो मिल्च एनिमल्स हैं, मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स है, वो कहाँ रहते हैं? वो जनरली शेड में रहते हैं. शेड में शेड कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, और हमारे बनाए हुए शेड के अंदर ये मिल्क गिविंग एनिमल्स रहते हैं. एंड उनके कौन से एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल्स आर काऊ, बफेलो, गोट. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल इज mammals. The animals like elephant, monkey, deer, bear, horse, goat, cow, etc. are called mammals.
ओके कौन से एनिमल्स आते हैं मैमल्स के अंडर? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैमल्स? द एग्जांपल्स ऑफ द मैमल्स आर elephant, monkey, deer, bear, horse, goat, okay, cow. These all are the examples of the mammals. Even you can say tiger, lion, buffalo, zebra. These all are the examples of the mammals. And how can you differentiate mammals from the other animals? Mammals give birth to the babies and feed them with their own milk. ये जो mammals होते हैं ये बाकी जानवरों से या बाकी प्राणियों से अलग कैसे होते हैं? उनको क्यों mammals बोलते हैं? क्योंकि ये जो mammals होते हैं, जो animals mammals के टाइप के अंडर आते हैं, वो सारे animals अपने जो बेबीज़ होते हैं उनको बर्थ देते हैं. मीन्स क्या होता है? ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं. एंड ऑल्सो दीज एनिमल्स फीड देयर यंग बेबीज with their own milk. So kids, generally these mammals, they give birth to their babies and also they feed their young ones, they feed their babies with their own milk. Generally all other animals, those who are not mammals, they lay eggs and then their babies come out of that egg. Okay, once the egg is hatched, their babies come out of that egg. But mammals don't lay egg. जो mammals होते हैं वो अंडे नहीं देते, एग्स नहीं देते हैं. जो mammals होते हैं, जो एनिमल्स mammals के टाइप के अंडर आते हैं, वो अपने बच्चे जन्म दे के पैदा करते हैं. पर जो बाकी के जानवर होते हैं, जो बाकी के एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे स्नेक हो गया, बर्ड्स हो गए, पिकॉक या हैन ले लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर, या क्रोकोडाइल ले लो, स्नेक ले लो. ये जो जानवर होते हैं बाकी के, ये सारे जानवर अपने बच्चों को एग्स जो होते हैं, एग्स के माध्यम से जन्म देते हैं. वो पहले अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, फिर उनके बच्चे उसमें से बाहर निकलते हैं, पैदा होते हैं. पर जो मैमल्स होते हैं, दे डोंट ले एग्स. मैमल्स कैरी देयर बेबीज इन देयर वोम एंड देन दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़. जो मैमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और वो अपने बच्चों को जैसे बाकी के एनिमल्स होते हैं उनके जैसे अंडे दे के नहीं पैदा करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, human beings are also mammals. So we are the human beings. Okay, हमारा जो आवर स्पीसीज़ इज़ नोन एज ह्यूमन बींग्स. हम किस टाइप के एनिमल्स के अंडर आते हैं? हमारे को बोलते हैं ह्यूमन बींग्स. बायोलॉजिकल नेम ऑफ आवर स्पीसीज़ इज़ ह्यूमन बींग्स. तो जो ये ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी मैमल्स के अंडर ही आते हैं. हम भी एक तरह के एनिमल ही है. और हमारा टाइप किसके अंडर आता है? हम कौन से टाइप के अंडर आते हैं? ह्यूमन बींग्स. हम मैमल्स कैटेगरी के अंडर आते हैं. वी आर दी मैमल्स. ह्यूमन बींग्स आर दी mammals. ठीक है. A bat is a flying mammal. So generally all birds, all the animals who can fly, they are known as birds. So bat is also a bird, but bat is the only bird who is a mammal. Bat जो है, bat आपने चमगादड़ देखा होगा. तो चमगादड़ एक पंछी ही है, बर्ड ही है, बट वो बाकी पंछियों की तरह अंडे देकर बच्चे नहीं पैदा करता है. जो ये बैट होता है, चमगादड़ होता है, वो हमारे ह्यूमंस के जैसे या बाकी मैमल्स के जैसे बच्चे पैदा करता है. वो बिना अंडे दिए बच्चे पैदा करता है. ठीक है, बिना एग्स के बच्चे पैदा करता है. And the next one is a whale is a mammal that lives in water. So generally all fishes, they lay eggs and give birth to their babies. Their babies come out of that egg. But only the whale is such a kind of a fish who is mammal and who gives birth to इट्स बेबी. ओके, जो मैमल जो ये वेल होता है, वेल मछली देखी होगी आपने, वेल फिश,
It is very huge in size. So whale is a mammal only, although it's a fish, but it's a mammal. Why it is mammal? Because whale gives birth to its baby. It doesn't lay eggs. जो ये whale होता है, whale जो fish है, वो अंडे देकर बच्चे नहीं पैदा करता है. वो जनरली बच्चे जन्म दे के पैदा करता है, बर्थ दे के पैदा करता है. इसीलिए वेल कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है? मैमल कैटेगरी के अंडर आता है. वेल मैमल टाइप के अंडर आता है. सो एनी एनिमल विच गिव्स बर्थ टू द बेबीज इज नोन एज मैमल्स. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल इज amphibians. Okay, the animals that can live both in water and on land are called amphibians. So the very specific characteristic of amphibian is that they can live on both water as well as on the land. ये जो amphibians होते हैं, ये इस तरह के प्राणी होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं. पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं. Generally all other animals which except the amphibians, they can live only either on the water or on the land. But only amphibian is such a type of animal which can live इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. आपने देखा होगा सारे जानवर, कोई भी तरह का जानवर ले लो, वो या तो ज़मीन में रहेगा ज़िंदा या तो पानी में रहेगा. दोनों जगह ज़िंदा नहीं रह सकता, दोनों जगह सांस नहीं ले सकता. बट सिर्फ एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह ज़िंदा रह सकते हैं. पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर भी ज़िंदा रह सकते हैं. जैसे इफ़ यू सी बर्ड कैन लिव ओनली ऑन दी land. If you leave bird inside the water, it will die because it cannot breathe inside the water, है ना. But if you see the fish lives inside the water only, and if you take out that fish and if you leave that fish on the land, that fish cannot live, that fish cannot breathe on the land and it will die immediately after that. But these amphibians, जो amphibians के अंडर आते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं? वो ज़मीन के ऊपर भी सांस ले सकते हैं और वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं. ये जो एम्फीबियंस होते हैं वो दोनों जगह सांस ले सकते हैं और दोनों जगह पर ज़िंदा रह सकते हैं. इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं. ओके, एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एम्फीबियंस? तो देखिए कौन से एनिमल्स होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं. टॉर्टॉइज, फ्रॉग, क्रोकोडाइल आर दी एम्फीबियंस. आपने देखा होगा टॉर्टॉइज, कछुआ जो होता है वो पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है. इसीलिए वो किस टाइप के अंडर आता है? वो एम्फीबियंस टाइप के अंडर आता है. फिर आप देखो फ्रॉग, मेंढक पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है. वो दोनों जगह सांस ले सकता है और ज़िंदा रह सकता है. इसीलिए फ्रॉग कौन से कैटेगरी के अंडर आएगा? एम्फीबियंस के अंडर आएगा. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द एम्फीबियंस इज क्रोकोडाइल. इफ़ यू सी द क्रोकोडाइल कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन इन द वाटर. हाँ, it can breathe inside the water as well as it can breathe on the land. That is why crocodile comes under the type amphibians. Okay, so these are the examples of the type amphibians. Tortoise, frog, crocodile are the examples of the amphibians. Now we will move on to the next type of the animal, that is reptiles. The animals that crawl along the ground are called reptiles. Lizard, chameleon and snake are the reptiles. So generally if you have seen the animals which live on the land, they generally walk on their legs. They have 4 legs, and only human beings are the animals which have 2 legs and they walk on their legs. But the reptiles are the such type of the animals, they crawl along the ground. They don't walk, they
क्रॉल। जो ये रेप्टाइल्स होते हैं, आपने बाकी सारे जानवर्स को देखा है, जो ज़मीन पर रहने वाले सारे जानवरों को देखा है, एनिमल्स को, काऊ ले लो, जिराफ ले लो, ज़ेब्रा ले लो, लायन, टाइगर, या हम ह्यूमन बीइंग्स को भी ले लो, मंकीज़ को ले लो, हम सारे अपने पैरों के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं। या हम रेंगते हैं? नहीं, हम सारे चलते हैं। बट ये जो रेप्टाइल्स टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, ये चलते नहीं है, वो चलते नहीं है, वो क्या करते हैं, ये ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं। सो जो एनिमल्स ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं, रेंगने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। सो द एनिमल्स विच crawl along the ground, they are called as reptiles. And what are the examples of the reptiles? Reptiles के क्या क्या examples है? Lizard, chameleon and snake are the reptiles. आपने lizard देखी है? lizard मतलब छिपकली। छिपकली क्या करती है, हमेशा ज़मीन के ऊपर रेंगती है, दीवारों के ऊपर रेंगती है। तभी लिजर्ड कौन से टाइप के अंडर आती है, रेप्टाइल्स के अंडर आती है। कैमिलियन, कैमिलियन मतलब गिरगिट। गिरगिट को देखा है आपने? गिरगिट भी हमेशा रेंगता है, वो रेंग के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वो वॉक करता है क्या, चलता है क्या, नहीं। सो जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेंगते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, रेप्टाइल्स। फिर स्नेक ले लो, है ना, किसी भी तरह का स्नेक ले लो, वो हमेशा आपको रेंगते हुए दिखेगा। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेप्टाइल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, rodents. Small animals with sharp teeth like rat and rabbits are called rodents. So जो एनिमल्स होते हैं साइज में छोटे होते हैं और जिनके टीथ बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, rodents. Okay, rodents. So what are the examples of the rodents? Rat and the rabbit. Okay. Now the next type of the animal is insects. Insects are small animals. We see insects all around us. Animals like honeybee, ants, bug, butterfly, grasshopper, housefly and cockroach are the insects. If you see over here, there are the pictures of the few insects. This is the picture of the bug, this is the picture of the honeybee, and this is the picture of the ant. So generally insects are very small in size and we can find them anywhere around us. Okay, and generally these insects have 6 legs. Okay, how many legs they have? They have 6 legs, and most of the insects have wings. They can fly also. सो जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, कीड़े मकोड़ों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसेक्ट्स। सो जो ये इंसेक्ट्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई, बग, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, मधुमक्खी, इन सारे को हम क्या बोलते हैं, मच्छर, मॉस्किटो इज ऑल्सो दी वन टाइप ऑफ अ इंसेक्ट ओनली. सो दीज ऑल आर नोन एज एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड दे हैव 6 लेग्स. उनको कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं. ओके, और इनको विंग्स भी होते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर सके, उड़ सके. सो दीज इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स एंड दे हैव विंग्स एज वेल सो दैट दे कैन फ्लाई. ओके, and what are the examples of the insects? The examples of the insects are honeybee, housefly, bug, ants, butterfly, grasshopper, cockroach, mosquito, etc. Okay, now we will move on to the last type of the animals, that is birds. Okay, birds are the animals that can fly. So generally birds are those animals which can fly. What is the difference between the birds and the other animals? The birds are the only animals which can fly. Birds यही एक ऐसे तरह का एनिमल है जिनको फ्लाई करना आता है, उड़ना आता है. ओके, बाकी सारे एनिमल्स देख लो, जैसे मैमल्स, वी आर द मैमल्स. कैन वी फ्लाई? नो. देन इफ़ यू सी रेप्टाइल्स जो ज़मीन पर रेंगते हैं, स्नेक वगैरह, कैन दे फ्लाई? नो. If you see other fish, can they fly? No, they can't fly. Only birds are the such type of the animals, they can fly. Okay,
Their wings help them to fly. Why they can fly? They can fly because of their wings. ये जो birds है किस वजह से फ्लाई कर सकते, किस वजह से उड़ सकते? बिकॉज दे हैव गॉट विंग्स, दैट इज़ वाई दे कैन फ्लाई. अब बर्ड्स जो है उनके पास पंख होते हैं, इसी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. They have 2 legs and 2 wings. So generally if you see any bird, it has 2 legs and 2 wings. आपने कोई भी पंछी को देखा होगा तो हर एक पंछी को 2 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं. विंग्स मतलब पंख. ओके. They have feathers and tail. Also these birds have feathers and tail. Okay. दे हैव अ बीक, और इनको एक बीक भी होती है. बीक मीन्स चोंच. ओके. उनका मुंह कैसे दिखता है, चोंच के जैसे दिखता है, और उसको क्या बोलते हैं, बीक. ओके. दे जनरली लिव ऑन ट्रीज वेयर दे मेक देयर नेस्ट. सो जनरली दीज बर्ड्स डोंट स्टे ऑन लैंड लाइक अस. जैसे हम लोग ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर अपने घर बनाते हैं, वो लोग ऐसे नहीं रहते. इफ़ यू हैव सीन डॉग, कैट, हैं, दे ऑल्सो जनरली लिव ऑन दी लैंड ओनली. बट दीज बर्ड्स दे जनरली लिव ऑन दी ट्रीज वेयर दे मेक देयर नेस्ट. जो ये बर्ड्स होते हैं ये जनरली पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं. ओके. सो